and gentlemen, on behalf of Chandigarh Lalit Kala Akademi, I welcome you all to Face, an interactive visual presentation by city-based senior artist Ram Pratap Verma and printmaker Jas Kamaljeet Kaur. Before we start, I would like to invite Chairman Chandigarh Lalit Kala Akademi, Mr. B. Malhotra, Vice Chairman, Mr. Ravinder Sharma, and Alka Jain, Principal Government College, to present the artist of the evening with a planter. Bhim Malhotra ji and Alka Jain ji to please present the planter to Ram Pratap Verma ji. Yes, sir. Now I request Ravinder Sharma ji and Alka Jain ji to please present the planter to Jas Kamaljeet Kaur ji. I request Bhim ji to say a few words. Good evening, everyone. Respected dear audience, city artists, art lovers, our special guest, Madhav Kaushik ji and Diwan Manna ji, और भी गुरदीप धीमान जी, विनय वडेरा जी, वैसे तो काफ़ी नाम है अगर मैं बोलने लग गया तो. और द स्टार ऑफ द डे तो हमारे राम प्रताप जी, जस कमल जी. मैं आप सबका तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आज आप यहाँ पे आए हैं. और जो हमारी जो फेस टू फेस पीछे सूरजमुखी जी बैठे हैं वो आगे तो नहीं आ रहे थे, थैंक यू फॉर. तो जो हमारी फेस टू फेस सीरीज़ थी, कोरोना से पहले हमने इसको स्टार्ट किया था. हमने शहर के कुछ आर्टिस्टों को इसमें हमने इनवाइट किया और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हमने कवर भी किए. अभी दोबारा से हम इसको जैसे कहते हैं ना रीविजिटिंग, तो हम दोबारा से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं. तो बीच बीच में हम करते रहेंगे क्योंकि बाकी हमारे काफ़ी प्रोग्राम होते हैं. तो ये वाली सीरीज़ हमने दोबारा से अब हमने किया तो स्टार्ट जस कमल जी और राम प्रताप जी से हो रही है. तो जस कमल जी और राम प्रताप तो मेरे क्लास फेलो हैं. तो ही इज़ ऑलराउंडर, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, तो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, तो काफ़ी कुछ करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं. और इनका सोचने का एक अलग तरीका है. जस कमल जी हैं जो हमारे दोनों ही आर्टिस्ट जो हैं, दोनों अपने आप में एक अलग इनकी क्लास है और अलग ही तरह का इनका काम है. अलग एक्सप्रेशन टेक्निक मीडियम कुछ भी और जो हमारे जस कमल जी हैं, इन्होंने हमारे ओपन एंड आर्ट स्टूडियो में भी काम किया हुआ है. शायद उनमें से आप कुछ काम यहाँ दिखाओगे. मैं ये चाहूँगा कि अभी जो हमारी फेस टू फेस सीरीज़ आगे स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं कि हम कि हर हफ्ते ही कुछ कर रहे हैं. तो कुछ ना कुछ रीजनेबल इंटरवल के बाद तो वी विल स्टार्ट दिस सीरीज और हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे. और जो आज स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं, मुझे लगता है जो टैबलो वगैरह में बिजी है ये. अलका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम. एंड बाकी जो टाइम काफ़ी हो गया है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारा ललित कला अकादमी का स्टाफ है, म्यूजियम का स्टाफ है, तो सबका मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा. और वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट ये दोनों जो हमारे आज के जो आर्टिस्ट हैं, जस कमल एंड राम प्रताप जी. होपफुली यू विल एंजॉय देयर प्रेजेंटेशन, देयर जर्नी. थैंक यू सो मच. It is my pleasure to introduce an artist whose creative journey spans more than 4 decades, Mr. Ram Pratap Verma. He often says, rendering with a pencil and the rubbing of a brush was more than a passion for me. When his passion became a profession, I don't know. I believe it was my destiny. These words beautifully capture the essence of his relationship with art, not as a choice, but as a calling. An alumnus of the Government College of Art, Chandigarh, Mr. Verma has continuously explored new dimensions of visual expression. While he is widely admired for his paintings, his curiosity and imagination have led him into mixed media and installation as well. Works such as Home Delivery of God and Do People Grow on Trees reflect his ability to question, provoke, and inspire through the form and idea. Over the years, he has exhibited extensively across India and abroad, and his contributions to the field of art have earned him numerous honors and awards.
This evening, he shares with us his creative journey titled Art, Passion, and Beyond, a glimpse into a life where art is not merely made, it is lived. Please join me in welcoming Mr. Ram Pratap Verma. Gratitude to my mentors, seniors, colleagues for their guidance, who have shaped my path, which helped me grow each day. With your wisdom, I have found strength along with the way. My sincere thanks to the August gathering as well. My gratitude to the place, this Chandigarh, I call this home, where the nature's beauty inspire and nature nurture me every day. A warm thanks to the CLK and his team and the gathering as well. As far introduction is concerned, अनु जी ने काफ़ी बता दिया. आई थिंक विजुअल प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करके फिर बात करते चलेंगे, तो दैट विल बी मच बेटर आई थिंक. मैं सारे जानते हैं, मैं इस शहर को जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि कहाँ से हैं, कैसे हैं, कि ये है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन के थ्रू सारा सामने आ जाएगा. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द, ये कॉलेज आने से पहले की जर्नी है. आर्ट्स कॉलेज आने से पहले 1978 में मुझे मौका मिला एक टैब्लू के थ्रू, टैब्लू डिज़ाइन करके या टैब्लू के लिए काम करके, वेयर आई मेट दैट नीलम सिंजेवा रेड्डी जी द प्रेसिडेंट, उनके साथ में हूँ, और मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम, एंड बाबू जगजीवन राम वाज द डिफेंस मिनिस्टर. ये 78 में मुझे चांस मिला था, जहाँ से मुझे ये, वैसे मुझे ये शौक़ आर्ट का पहले से ही था. एंड मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक पेंटर को भी ज्वाइन कर रखा था, तो मुझे वहाँ से ये मिली थी. और दूसरी चीज़ थी कि हम उस टाइम इतना ये मैच्योरिटी नहीं थी या पता नहीं था कि मैंने पेंटिंग के अलावा भी कुछ करते हैं. तो हमने एक प्ले किया था विच वाज आई थिंक डायरेक्टेड बाय माधव जी, आज बैठे हैं यहाँ पे, बर्फ़ के लोग छोटे छोटे, जिसको हम ले करके 1980 में गेटी थिएटर में आए थे शिमला. तो उसमें मैंने ये आर्टिस्ट का ही रोल करवाया था इन्होंने मेरे से, ये मैं आर्टिस्ट का रोल कर रहा था. तो ये स्लाइड दिखाने का पर्पज़ ये है कि भी आर्ट का कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ लगाव या उसका रिफ्लेक्शन चल रहा था उस टाइम पे. नेक्स्ट प्लीज़. जब मैंने 1979 जनवरी में मुझे एक वहाँ पे हरियाणा में जॉब मिल गई थी आर्ट टीचर की. और एज़ यूजुअल जैसे आर्ट टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी सबसे पहले कहेंगे जी जा करके यहाँ का सीन डिफरेंट है, आई विल नॉट डिस्कस दैट, बट मुझे कहा गया कि जी 2 पेंटिंग बना दो. तो ये मैंने पेंटिंग बनाई थी. तो ये मैं इसलिए दिखाई है कि बनाई थी, ये नहीं कि किस तरह स्किल था या क्या था. ये था कि मैं कॉलेज करने के बाद और 8-10 साल नौकरी करने के बाद जब वहाँ पे एक बार ऐसे ही चला गया, जैसे जाते हैं कि शहर में चलो उसको देख के आते हैं, तो ये सारे स्कूल की रेनोवेशन पेंटिंग में नहीं सब हो चुकी थी, बट ये उन्होंने बचा के रखी थी और मुझे कोई नहीं जानता था. तो मैंने वहाँ जाके हेडमास्टर से, उससे जो भी था वहाँ हेडमास्टर्स होते थे, ये पूछा था कि ये कहते जी यहाँ पे एक टीचर आया था, उसने ये बनाई थी, ये इतनी अच्छी बनी हुई थी कि जी हमने इनको मिटाया नहीं. तो ये इसलिए मैंने आपको दिखाई कि बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज मेरे को ये था, और वहाँ पर लोगों ने कहा तू इतना अच्छा करता है तो तू कहीं और निकल जा. नेक्स्ट, जो मैंने आपको शेयर किया कि जो हमने प्ले किया था, तो जब हम यहाँ पे आए तो मैं 20 सेक्टर 42 नंबर मकान में हम ठहरे थे, और मैं उससे अगले दिन आर्ट्स कॉलेज आ गया और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं वो नौकरी छोड़ करके ये ज्वाइन कर लूँगा. तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ के अंदर. तो दिस इज़, ये मेरे BFA फर्स्ट ईयर के काम है. ये स्टिल लाइफ करवाते हैं, ये मॉडल स्टडी जो करवाते हैं, ये उस टाइम का काम है. नेक्स्ट प्लीज़. ये उसके बाद फिर जो यहाँ पे आकर के इस एनवायरनमेंट में, या जो आप लोगों की और यहाँ जो फैकल्टी है और हैं सबके साथ रह के जो सीखा, तो मैंने ये ड्राइंग्स करनी शुरू की थी. ये ड्राइंग्स थी, और दीवान जी को शायद याद होगा कि एक यहाँ पे NZCC जब शुरू में बनी थी तो 17 में बहुत बड़ा शो लगा था. तो ये 2 ड्राइंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी मेरी. नेक्स्ट, ये पेंसिल में है. फिर ये मैंने पेंटिंग्स बनाई थी, इनमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था यहाँ पे जो फैकल्टी थी उनका, बट ये कि मुझे ये जो फिगर ड्राइंग करनी बहुत अच्छी लगती थी. और ये फ़्लो कहाँ से आया था कि मैं साइन बोर्ड पेंट करता था, तो वहाँ उससे ना आपका
जो है ना विजुअलाइजेशन का ये और उसको हाथ का वो काफ़ी वो फ्रीडम सी आ जाती है। आज की डेट में भी मुझे कोई ये है कि जी यहाँ से ये 200 फुट की दीवार है तो आई विल नॉट टेक मोर देन 2-3 आवर्स टू पेंट दैट। तो ये उसकी देन है, तो मैं उसको ब्लेसिंग्स मानता हूँ उन सब चीज़ों को। ये मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन था, तो उनको मुझे ये फिगर ड्राइंग करना अच्छा लगता, तो ये मैंने पेंटिंग्स बनाई थी 1986 में। नेक्स्ट, ये एक मैंने सीरीज़ की थी जो फील करते हैं, उसके आगे सीरीज़ भी आएगी। ये मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी भी, स्ट्रोक्स में किस तरह काम करते हैं। फ्रीडम में मुझे काम करना काफ़ी अच्छा लगता था। दिस वाज ए वन पेंटिंग, ये 34 बाई 34 इंचज़ की है और ऑयल ऑन कैनवस है। नेक्स्ट, ये एक आपको सबको याद होगा, इस शहर में एक बारी कर्फ्यू लगा था 1984 के आसपास जो हुआ था। तो मैं उन दिनों में जनसत्ता के साथ भी काम करता था। मेरे ख्याल पुष्प कुमार सिंह हुआ करते थे जो था, तो मैं उसके उनकी जो स्टोरी या गज़ल जो होती थी, मैंने एक कॉलम शुरू किया था वहाँ पे, उन्होंने किया था। मैं उस कॉलम को डिज़ाइन करता, उसका नाम था गज़लियात। तो उसमें ऐसे लेख आते थे। तो एक बारी ये उन्होंने एक अनाउंस किया था, एक लेख लिखा था कि कर्फ्यू उठा लिया गया है, जब कर्फ्यू लगा हुआ था। तो ये जो पेंटिंग है ख़ास तौर से, ये उस लोगों की है जो बेचारे भर के बाहर निकलते थे। तो ये है किस चीज़ में, मीडियम क्या है कि ये स्प्रे है पोस्टर कलर का। और ये जो इधर लेडीज़ है ये बात करते थे भी कर्फ्यू उठा लिया गया तो कैसा फील होता होगा। तो ये मेरे पास मीडियम था, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम ऑलमोस्ट हम स्टूडेंट लाइफ से निकले ही थे, तो कोई ज़्यादा इतना वो नहीं होता था। तो मैंने ये स्प्रे में एक सीरीज़ की थी जिसमें मैंने करीब करीब ये 40-42 पेंटिंग्स बनाई थी इस सीरीज़ की। तो उसको स्टेंसिल काट करके और जो स्प्रे करते हैं गन से, ये उसमें अंदर काम था। और जो ये पेपर है ये उस एटमॉस्फेयर का क्रिएटिव है भी, उसमें आवाज़ जो क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, ये उसी सीरीज़ का काम है। इसमें थोड़ा सा जो है ना पर्सपेक्टिव चेंज किया है और वहाँ पे पूरी मैं एब्स्ट्रैक्शन में चला गया था। तो इस सीरीज़ में सारे काम तो यहाँ मैं नहीं दिखा पाऊँगा, ना दिखाने का वो है कि 4 काम मैंने आपको ये डिस्प्ले किए हैं कि उस एटमॉस्फेयर में जब कर्फ्यू लगा हुआ था, या वो जो एटमॉस्फेयर था वो किस तरह का खालीपन किस तरह लगता था। तो जैसे परे वाली सीरीज़ है उसमें वो उस खालीपन को, उस आवाज़ को पेपर के माध्यम से दिखाया, पेपर फ्लोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक मैंने शो किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, हिपोक्रेसी। दिस इज़ इन वाटर कलर। और ये वाटर कलर में ये जो लोग दिखा रखे हैं, ये मेरा अपना सोचने का तरीका है कि भाई हिपोक्रेसी क्या चीज़ है, इसकी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते थे, होता कुछ है, बातें कुछ और होती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती थी कि 1986 में पास आउट करने के बाद मुझे जॉब मिली हरियाणा साहित्य अकेडमी में। तो जहाँ मुझे मौका मिला, बहुत बड़े बड़े, मैंने डॉक्टर नामवर सिंह के साथ काम किया, मुल्क राज आनंद के साथ काम किया, बड़े बड़े शायर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। और भाई जी बैठे हैं यहाँ, हम शायरी तो आलमोस्ट हमारी उसमें थी, करते ही रहते थे। कैसी थी ये, इस चीज़ को कोई असेस नहीं करता था। तो ये जो चीज़ आई थी वो उन जो इस सीरीज़ का ख्याल आया था वो उस शायरी के माध्यम से आया था, हम किस तरह महसूस करें। और उसको फिर मैंने ये पूरा शो लगाया था, वाटर कलर में ही शो था। और ये 11 बाई 14 इंच की छोटी पेंटिंग्स थी। नेक्स्ट, ये उसी सीरीज़ का काम है कि भी आप सब कुछ निकाल दो, और है क्या उसके अंदर, ह्यूमन फॉर्म्स हैं निकल रही हैं, उधर भी ह्यूमन फॉर्म्स हैं। घोड़ा मेरे लिए इसलिए ठीक रहा है कि घोड़ों को मैं सिंबल मानता हूँ पावर का। और जब पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है किसी चीज़ की भी जिसको आप करते हो, तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है, वो मैंने कोशिश की थी इसमें ये पोर्ट्रे करने की। नेक्स्ट, ये आईफेक्स में मेरे ग्रुप शो लगाया था हमने, मेरे ख्याल उसमें मदन जी भी साथ थे, अगर आए हुए होंगे तो 1997 की बात है। तो हमने इसमें लगाया था, स्ट्रोक्स में काम किया था उस टाइम पे भी, जैसे मुझे ये शौक़ था। ये सारी ऑयल पेंटिंग्स हैं, तब तक एक्रेलिक मीडियम मैंने शुरू नहीं किया था। और मेरे ख्याल से मार्केट में आ तो गया था लेकिन शुरू नहीं किया था हमने एक्रेलिक, ऑयल में ही काम करते थे। ये वाली जो पेंटिंग है ये उसी टाइम की बनी हुई है। नेक्स्ट, ये फिर मैं इंस्पायर हुआ था एक नेचर से। नेचर मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, फूल है, क्योंकि शहर की जो आप रोज़ गार्डन से हम रोज़ गुजरते थे कॉलेज आते जाते, तो ये जो नेचुरल ब्यूटी थी ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था इसके फ्लावर्स देख करके ये वो। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने हर संडे को अपनी यहाँ पे कुछ नहीं काम करते थे, संडे को रोज़ गार्डन ज़रूर आकर के एंजॉय करना होता था। तो उससे इंस्पायर होकर के ये चीज़ मैंने पेंटिंग्स बनाई थी। ये सब
ऑयल पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये दोनों उसी से हैं, ये दोनों पेंटिंग भी ऑयल में हैं। वो 30x4 की, ये 3x4 की पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग्स है सारी। नेक्स्ट प्लीज़। ये वो हिप्पोक्रेसी की सीरीज़ का पार्ट है। मैं इसकी जो इनकी फॉर्म्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हॉर्स पावर जो होती है, जब तक आप उसको कंट्रोल में रखते हो किसी पावर को, तब तक तो वो आपके काबू में रहती है। जब थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ उसको आप वैल्यू दे देते हो, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के आप ही को अटैक करती है। और फिर ये ब्लाइंड फोल्डेड ये है कि उनको समझ नहीं आता कि हमने क्या किया है। जो पावर को रखते हैं अपने पास, उसको क्या बोलते हैं, नर्चर करते हैं या उसको संभाल के रखते हैं, बाद में ये नहीं पता चलता कि आपको भी नुकसान कर सकती है वो। तो उन सी चीज़ों को लेके, जैसे हिपोक्रेसी वाली भी थी या जो वाटर कलर की सीरीज़ थी, ये सारे एक ही सीरीज़ का काम था। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक 17 सेक्टर के अंदर इधर आते जाते हैं ना, इसमें छोटी सी बात बताऊंगा कि हम फील किया करते थे। और गुलजार साहब की एक गाना चला करता था जो कोशिश पिक्चर में था कि भी प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नामदाद, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। मेरे वो दो दिमाग में वो लाइन बैठ गई कि भी अगर सारा कुछ आप भूल जाओ तो व्हाट वी आर, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। आप ग्लोब को, अर्थ जैसे ग्लोब को इससे निकाल दो, हम सारे फ्लोट ही तो कर रहे हैं, घूम कर रहे हैं। तो जो इनविजिबल था, जो नज़र नहीं आता था, उसमें विजिबल को लेकर के मैंने ये सीरीज़ बनाई थी पूरी। और इसका मैंने शो किया था नेहरू सेंटर मुंबई में। ये मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैंने डिस्प्ले की थी, 34-35 पेंटिंग्स डिस्प्ले की थी। तो ये उसमें था, और वो सारी वो भी ऑयल में ही थी तब तक, ये सारी की सारी। तो ये इसीलिए मैंने इसको इनविजिबल, जो आपको नज़र नहीं आता, उसको विजिबल करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मेरी सबसे फेवरेट सीरीज़ थी ये, टी डिप्लोमेसी। अब टी डिप्लोमेसी का भी ऐसे एक छोटा सा इंस्टांस आता है कि हम कुछ दोस्त लोग बैठे थे कहीं पे, और जैसे किसी के पास कोई काम हो, आपने बोलना है जी मैंने एक्स से मेरे यार काम था, कोई रास्ता बताओ किस तरह इस काम को करवाया जाए, या इस काम को आसानी से कैसे किया जा सकता है, कोई रास्ता बताया जाए। तो कहने लगे भी आप वैसे रिक्वेस्ट करके देख ली, हो गया जी, रिक्वेस्ट करके देख ली, बगाल नहीं बनी। तो वो कहने लगे फिर एक काम करो, तुसी उन्होंने घरे चाह ते बुला लो। ये मेरे दिमाग में एग्जैक्ट लाइन हुई, तुसी उन्होंने चाह ते बुला लो, थोड़ा काम हो जाऊगा। तो वो चाय जो फैसिलिटेशन मिली, दैट वाज यूज्ड एज ए डिप्लोमेसी। तो जब ये पेंटिंग्स मैं बना रहा था तो एक और चीज़ भी आई, किसी ने, आई वाज वर्किंग विद द SCRT एट द टाइम, तो एक वहाँ पे कोई और कलीग थे, तो कहने लगे आपने इतना अच्छा वो किया है काम, आप एक काम करो, आप कभी हमारे घर आओ, आपको चाय पिलाते हैं। हमने कहा जी मैं तो चाय पीता नहीं। कहने लगे नहीं, हम आपको आपके टेस्ट की ग्रीन टी पिलाएंगे। तो वो मुझे क्या, उससे मुझे क्या सीखा मैंने, कि ग्रीन टी वाज यूज्ड एज ए स्टेटस, कि हमारा स्टेटस ये है। तो मैंने उस सीरीज़ के अंदर ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, रेड ट्रायंगल टी, रेड कारपेट टी, ये सब बनाई। ये जो पेंटिंग है ये है रेड ट्रायंगल टी और ये है रेड कारपेट टी। अब रेड कारपेट टी की मैं आपको छोटी सी इसके पीछे ये वाई दिस इज़ टाइटल्ड एज ए रेड कारपेट टी। 1986 में एक अपने कॉलेज के अंदर क्या इस पे इंटीग्रिटी के ऊपर एक कोई कंपटीशन हुआ था, जिसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और 26 जनवरी पे इन्होंने ऑनर किया था। तो जब एक फिर एट होम होती है पार्टी, जिस दिन जिनको 26 जनवरी पे जिनको ऑनर करते हैं, तो गवर्नर साहब के यहाँ तो सारी दुनिया, मतलब सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, ये जो ब्यूरोक्रेसी है और अफसर जो भी जाते हैं, सबको आपको पता ही है। एक मैं ही था जो अकेले गया था, और मेरे पास वो कार पार्किंग का पता थी, साइकिल उस टाइम में तो वो भी सारा कुछ था। बट इसमें रेड कारपेट कहाँ से आया कि एवरीबडी वॉज बिजी टू गो क्लोज टू द गवर्नर और द अदर ऑफिसर्स, नोबडी वाज बॉदरिंग फॉर द टी। एक मैं ही था, चाय पी, ये मैं जा रहा हूँ चाय पी और अपना घर वापस आ गया। इसलिए ये दिस वाज टाइटल एज ए रेड कारपेट टी। कि रेड कारपेट भी होता गया है कि चाय वाय कुछ नहीं, अपना वो तो आई डोंट नो आपको कैसी लगी, बट मेरी फीलिंग ये थी, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है ये उसी रेड इसका टी डिप्लोमेसी का पार्ट है, स्ट्राइविंग फॉर टी। कई ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनको चाय ही नहीं मिलती, आपको बोलते यार चाय तो पिला दो,
ऐसे बोलते हैं हम लोगों पे, चलो चाय पिला दो जी। तो दैट पीपल्स आई कंसीव दैट आइडिया एज ए कि भी दे आर स्ट्राइविंग फॉर द टी। आप वो कर रहे हैं कोशिश को, मैंने ये देखा भी वो चाय के लिए ही कोशिश कर रहा है। और जो ये सारी फिगर है ये अपने आसपास की, हमारे आर्ट्स कॉलेज के आसपास की, या पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अपना फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है उसके बाद भी वो एक बैठता था ऐसे। ये सारी चीज़ें वही हैं। और यहाँ ये कप गिरे पड़े हैं, ये पार्ट ऑफ कंपोजिशन है, और वो जो लोग छोड़ देते हैं ये उससे इंस्पायर होकर के बने हैं। वो भी इसी तरह से कि समटाइम्स चाय के लिए भी लोग, इसमें एक ये होगा वो जो उसको क्या खेलते हैं, गोटी जो किस पे खेलते हैं, उस पर चेस पे खेलते हैं, किस पे नहीं, चेस पे नहीं खेलते, किस पे, हाँ वो खोलते हैं वो। ये उससे इंस्पायर होकर के बनाइए कि भाई कुछ इस तरह भी प्लान करते हैं उससे चाय पी कैसे जाए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम डायरेक्ट। तो ये थी। और ये बड़ी पेंटिंग्स हैं, करीब 5.5 फुट बाई 4 फुट की, और ये दोनों एक्रेलिक में हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये है जो मैं आपसे बात कर रहा था, ग्रीन टी। ये रेगुलर टी, आम जो चाय होती है, इसमें एक और बड़ी सारी चीज़ थी। इसमें मैंने सिर्फ कैटल बनाई थी, वो थी आम आदमी की चाय, जिसको वो इतने सारे कप लेकर के आपके सामने घूमता रहता है। कैटल में चाय होती है और आपको डाल के दे जाता है। वो इतनी सारी दिखाई नहीं जा सकती। करीब ये मेरे ख्याल से 40 के करीब पेंटिंग्स थी मेरी सारी की सारी। नेक्स्ट प्लीज़। ये था इनविजिबल टू विजिबल का पार्ट जो मैंने लीला होटल में डिस्प्ले हुआ था। ये इसमें एक ख़ास बात थी, इस पेंटिंग को अवार्ड भी मिला था। इस पेंटिंग को यहाँ पे मेरे पास, मैंने जो ह्यूमन फिगर मेरी जो उनमें आ रही हैं, जो पहले वाटर कलर में भी आई वही थोड़ी, इनको मैंने फुल फॉर्म में लेना शुरू किया और दिखाया कि भी लोग कैसे करते हैं। नाउ अबाउट दिस पेंटिंग इज़ ए मैन जिसके पास थोड़ी सी सामर्थ्य है या थोड़ा सा ठीक है जो वो करता है, या जिसको डायरेक्टली अगर बोला जाए कि जिसके पास पावर होती है, तो वो प्ले करते हैं आपके साथ। भाई किसको इसमें दे रखा है भी सिम्बॉलिकली फुल एप्पल एंड दिस इज़ ए हाफ एप्पल, उसकी मर्जी है किसको क्या देगा वो, एंड दे प्ले विद यू गाइस। तो इसको आप नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिकल वो नहीं है, स्टायर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ऐसा फील करता हूँ कि ऐसा होता है, और घर में भी होता है कि अपनी आम जिंदगी के अंदर भी होता होगा। और ये दूसरी है, ये अर्थ को सिम्बलाइज लेके हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और अर्थ के चारों तरफ इसी तरह से घूमते हैं, यही अपनी ज़िंदगी है। और इसमें जो अम्ब्रेलाज वगैरह होंगे ये शेल्टर का सिंबल है। नेक्स्ट, ये नेचर से ही रिलेटेड है। जो नेचर है, अगर नेचर कितनी खूबसूरत होती है, ग्रीन पेंटिंग ये किसी ने ऑस्ट्रेलिया में खरीदी थी, उसी के पास है आज ये। और ये भी है कि हम जो, अब मैंने इससे पहले बात की थी, हम पहले पावर को, किसी चीज़ को, जो अगेन हॉर्सेस हैं सिंबल ऑफ पावर, जिसको हम इनवाइट करते हैं और उनको जो ना पालते हैं डायरेक्टली अगर बोला जाए तो। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब उसी का पार्ट है, उसी सीरीज़ का। एंड दिस इज़ लेयर्स ऑफ टाइम। लेयर्स ऑफ टाइम में अगली पेंटिंग ज़्यादा नहीं बताता हूँ कि वक्त क्या क्या बदल गया है, और वक्त के अंदर आदमी, ये जो वक्त के साथ सारा बदला, इधर ये पुराना टाइम है, ये मॉडर्न टाइम दिखाया मैंने। मॉडर्न टाइम है, जैसे सिम्बॉलिकली ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि हम जो है ना, इधर ये इसमें भैंस को सिंबल रखा है मॉडर्न का, और उसको लिखा पुराने उसका, पास्ट एंड प्रेजेंट वाले सिस्टम में। तो किस तरह दुनिया वर्क कर रही है, व्हाट आर द चेंजेस केम इन दैट। दिस इज़ अगेन दैट, ये लेयर्स ऑफ टाइम है, वक्त में क्या क्या बदला है, ये सारी चीज़ें छूट गई है पीछे और मॉडर्नाइजेशन आ रही है। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब उसी सीरीज़ से हैं। इसमें एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि भी ये पैरट्स को इसलिए दिखाया कि हम काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं। जो बेचारा रोड पे बैठा होता है उसको जाके 5 रुपये 10 रुपये जो भी फीस देंगे, उसको पूछेंगे मेरा फ्यूचर क्या है। तो तोता, जिस तोते में मेरे ख्याल से आदमी के कंपैरेटिवली 1% भी बेचारे में ब्रेन नहीं होता, और वो एक लिफाफा निकाल के आपको पकड़ा देता है और आप सेटिस्फाई फील करते हो। तो वो एक थेरेपी की तरह से काम करती है चीज़। वेयर एज की ये अभी तो सिटी में मैंने देखे हुए ये, बट ये सिटी है, सिटी में ये चीज़ें थोड़ी सी मिस हो रही हैं, ये उसका सिंबॉलिक है। ये भी वही लेयर्स ऑफ टाइम है। वी आर लिविंग बिहाइंड दिस लेगेसी, HMV की सिलेंडर, ये जो ये सब हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये 42 बाई 46 के बड़े काम है और एक्रेलिक में है। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक चीज़ है कि ये है पिगमेंट्स में है, नेचुरल पिगमेंट्स में।
हम सिटी में आके हमने पूछा, बाहर सोया करते थे पहले, गाँव के अंदर बाहर सो जाते थे, या इस शहर में भी होता होगा। तो हम आज वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, छत के ऊपर सोना, खुले आसमान में सोना, वो नहीं मिलती हैं। तो इसको मैंने टाइटल भी ये दिया था कि फुर्सत के वो रात दिन। तो ये नीचे शहर नीचे रह जाता है और आप एलिवेटेड फील करते हो आसमान के ऊपर। तो ये वो पेंटिंग थी। नेक्स्ट प्लीज़। ये वही सारी उसी से इंस्पायर्ड है, लेयर्स ऑफ टाइम पे वक्त में क्या क्या ले लिया और क्या क्या है अभी तक ये। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब ये पिगमेंट्स में दोनों पेंटिंग। कई बार ये लगता है कि भी हम जो है ना, इस स्पेशली इन रिगार्डिंग दिस पेंटिंग मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो रहा हो शहर के अंदर, हम आप अभी बोलते हैं यार छोड़ो टेंशन, छोड़ो अपना मस्ती मारो। तो कहता है जो मर्जी हो रहा हो, तो ये बैंड वाला ही सिंबॉलिक है, सारी दुनिया को पीछे छोड़ो और अपना आराम से मस्ती की ज़िंदगी जियो, अपना बैंड खुद बजाओ, दैट्स इट। ये उससे इंस्पायर हो करके। नेक्स्ट। ये पेंटिंग है कि आदमी आज का अर्जुन है। आज के अर्जुन के बहुत सारे टारगेट हैं। पहले तो उसका एक ही टारगेट था ना, आजकल तो बहुत है, मेरे को मकान भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए वक्त के साथ। तो ये उसको पोर्ट्रे किया है और इसमें एक मेरे ख्याल से हाँ ये है, टाइम वक्त के साथ ये सारा कुछ बदल रहा है। सिमिलरली वो है, ये भी वही है कि भी अपने टारगेट अचीव करने में दुनिया बिजी है, उसको सेंसिटिविटी को लेके है। और ये दोनों ये भी ऑयल पिगमेंट्स में, नेचुरल पिगमेंट्स में पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक सीरीज़ थी और जब वही फिर बात आती है कि थोड़ा सा मुझे शायरों से और शायरी से बड़ा लगाव था, तो राना शहरी की एक नज़्म थी कि ना दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, यहाँ किसका चेहरा मैं पढ़ा करूँ, यहाँ कौन कितना करीब है। तो ये शहर की बातें हैं। और ये कहाँ से आती है, जैसे मुंबई में आप चले जाओ या अपने यहाँ पे भी अब हो गया, फ्लैट्स में कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं, साथ वाले को भी नहीं जानता है। तो शायद उसने उससे इंस्पायर होकर लिखी, तो मेरे दिमाग में बैठ गई भी मैं इसको कैसे पोर्ट्रे करूं। एक ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा कि मैंने फिगर्स वगैरह खूब बना ली थी, तो मैं कहा फिगर लेस कोई काम करके देखते हैं। तो बेसिकली वो इंस्पायर उससे हुई थी चीज़ें। नेक्स्ट प्लीज़। ये उसी सीरीज़ का काम है, खालीपन है इसमें। नेक्स्ट। ये भी वही है, ये किसी ने इंग्लैंड में काम खरीदा था जब मैंने शो किया था 2023 में। नेक्स्ट प्लीज़। ये भी वही है, ये आपको भीम जी को याद होगा जिन्होंने कर दी, आपके स्टूडियो 19 में बैठ के बनाई थी। और ये सेम उसी से हैं। और ये मैं ये सब सिंबल्स हैं कि हम बेसिक चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं और मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, ये उसको सिंबलाइज़ किया है इस बेसिक चीज़ में। और ये मेरी पुरानी ज़िंदगी से रिलेटेड है। मैं एक साइन बोर्ड जो ये किया करता था उसको लेकर के मैंने किया कि बेसिक भूल रहे हैं और सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है सारा कुछ। नेक्स्ट प्लीज़। द सेम, वही फ्रीडम लिए, लेयर्स ऑफ टाइम, समय में क्या बदला है। अब इसमें दो चीज़ें मैंने कंपैरेटिवली बनाई है कि ये एक राग गाने की ये चीज़ें हुआ करती थी। राग गाते थे तो क्लासिकल मीन्स आपकी स्टडी बेस्ड है वो सारा कुछ, आपकी पूरी गहरी स्टडी होती है, तब आप राग को या किसी चीज़ को, आर्ट को, सिमिलरली मैं इसको अप्लाई करता हूँ आर्ट में भी। जब तक आर्टिस्ट की स्केचिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्टडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो अच्छी मैं मानता हूँ, वैसे बाकी माने ना माने वो जो अलग बात है, कि वो अच्छा एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। ये हमें इस कॉलेज में सिखाया और मैं भी फील करता हूँ। तो इसमें ये जो है ना, ये राग को सिम्बोलाइज़ कर रही है। और ये जो है, ये राग क्लासिकल बेस्ड गा रहा है, और ये जो है जो आजकल कुछ भी गाने लग गए लोग, तो क्रो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कुछ भी गा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये मैंने एक पीछे सी एक बुक लिखी थी और एक फिल्म भी की थी, उससे इंस्पायर होकर बताई थी। एक हमारे उसमें चलती है कि जी इतने सारे इनकारनेशंस हुए हैं, विष्णु ने उसका अवतार ले लिया, उसने उसका अवतार लिया था। मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई रियली एक्सेप्ट। तो मैंने ये एक अपना अवतार अलग से क्रिएट किया है पेंट आर्टिस्ट के एंगल से, कि ये भी एक है जो है अवतार के उसमें ये भी। और ये अवतार कौन है आजकल के में, जिसके पास सामर्थ्य है। वो सामर्थ्यवान क्या करता है कि आपने देखा होगा बच्चे एक वो बनाकर के इतना बड़ा धागे का रिंग इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा के खेला करते थे। तो आज दुनिया में जिनके पास सामर्थ्य है, डायरेक्टली कहूँगा तो लोग उसको जोड़ लेंगे उसके साथ, जो राजनीति में या उसमें आते हैं, वो यही करते हैं हमारे साथ, किसकी उसके साथ, इसकी उसके साथ, उसकी उसके साथ। तो इसलिए आज इस अवतार की ज़रूरत है। ये भी अवतार यही कर रहा है आजकल। और पहले वाले अवतार की आप स्टडी करोगे तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि क्या था, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा।
और ये है एक, इसका टाइटल मैंने दिया था वही लेयर्स ऑफ टाइम में, बीते हुए लम्हों की कसक। अब जो बीते हुए लम्हों की कसक क्या होती है, जो पास्ट था हमारा वो बहुत रिच था, जिसमें आज भी लोग बोलते हैं कि बड़े हम खुश रहा करते, रिलैक्स थे, ये था वो था, वो मैंने सारा इसको टेक्स्ट के माध्यम से दिया। और ये इसलिए दिया कि ये पुरानी वॉल पेंटिंग से रिलेट करता है। और इसको ये जो था, ये मैं देखा था, ये नेचर को हम जो छोड़ चुके उसको सिम्बोलाइज़ कर रहा है। ये ऊपर जो चीज़ है ये उसको सिम्बोलाइज़ कर रहा है। तो ये जो मुझे एक दर्द जो लगता है, जब मुझे फील होता है दर्द के, मुझे फील होता है कि जो पास था हम कहीं पे छोड़ते जा रहे हैं, तो उन लम्हों का जो कसक है, लॉन्गिंग्स है जो उनकी, तो ये उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। बट अपना मीडियम वही जो सिटीज़ वाला रही है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो मैंने उसमें जारी रखा था। नेक्स्ट प्लीज़। अब आती हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट, ये इनका कोई टाइटल कोई कुछ नहीं है। ये जब मैं पेंटिंग कर करके, या कई बारी पेंटिंग करने का रोज़ तो नहीं कर सकते आप, दिल भी नहीं करता, तो मैंने अपने बहुत सारी सीटें लेके रखी हुई हैं, वो उठा करके और अपना इंक या कलर जो भी ब्लैक कलर या वो लेके बैठ जाता हूँ। तो ये रैंडमली मतलब मैं करता हूँ। जब भी मैं, वो कहते हैं जब गमे दिल सताता है तो हंस लेता हूँ, तो मैं ड्राइंग कर लेता हूँ बैठ करके। और ये बड़ी साइज़ की हैं, 22-28 से बड़े साइज़ की ड्राइंग्स हैं। 1-1, 2-2, 4-4 मिनट्स की इसमें ये 1-1 मिनट की ड्राइंग्स मैंने की है। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब वही उसी से रिलेटेड ड्राइंग्स हैं ये। और ये हमने मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक में ने इसमें शो किया था, ऑलियंस में ड्राइंग्स का। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब उसी वही ड्राइंग्स हैं बैठ करके। ये वही स्टडीज़ है सारी, जहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग करने को दिल करता है वहाँ पे ये कर लिया। नेक्स्ट। और ये एक ड्राइंग्स नहीं है, जैसे ये ड्राइंग्स है, इसमें सीरीज़ की सीरीज़ है, 25-30 ड्राइंग्स कम से कम है। और जो पहले जो गई हैं उसमें तो सैकड़ों है, भरा पड़ा है मेरे पास वो सारा का सारा फ्रीडम। नेक्स्ट प्लीज़। ये वो जो बैठ गए, मतलब ये है जो समटाइम्स जस्ट कमल विल डेफिनेटली रियलाइज़ कि स्कूल में भी बोर्डरूम बहुत होता है। और स्कूल में बोर्डरूम जब होता है, अपने रूम में चले जाओ और बैठ के ब्रश लेकर ड्राइंग करनी शुरू कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर है कि अपना हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट प्लीज़। उसी में मैंने थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट की भी, चलो वो बड़ी सीटें हैं तो उठा के कलर लगा करके एब्स्ट्रैक्ट की। और इसमें मेरे पास मेरे ख्याल 60-70 ड्राइंग्स है, ये जो ये इस सीरीज़ की ड्राइंग्स है मेरे पास। नेक्स्ट प्लीज़। ये बिल्कुल एक बारी ऐसे ही कुछ हुआ कि भी सब कुछ भूल जाओ, जैसे मैंने पहले एक उसमें सीरीज में किया था कि भूल जाओ, इनविजिबल टू विजिबल वाला फेज़ फिर से आया, तो मैंने सारी चीज़ें भूल करके इनको एक पेन ले करके और रेंडरिंग करके बैठ जाता था, कुछ नहीं फालतू बोलना। नेक्स्ट। ये उसी सीरीज़ का पैगाम है। ये डू समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं, छोड़ो। और ये जब दोबारा जो एक बारी जो है कि इन सब पीछे, इनके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ छुपी होती है। मुझे पता भी नहीं था कि आई वॉज पोस्टेड इन सेक्टर 19। हम एक दिन ऑर्डर आया कि जाओ जी आपको उठा करके SCRT भेज दिया, मुझे पता ही नहीं लोग कुछ, तो वो उससे परेशान होकर के, इसीलिए मैंने स्टैम्प्स वगैरह यूज़ कर रखी, भी किसी का ठप्पा लगा और मैं वहाँ चला गया। तो ये ड्राइंग्स मैंने उस टाइम क्रिएट की थी। नेक्स्ट प्लीज़। ये वही है, ये 11 इंच बाई 14 इंच की ड्राइंग्स हैं। नेक्स्ट। फिर कुछ दिल करता है कि एक्सपेरिमेंट भी करें, क्योंकि जैसे भीम जी ने अपने इंट्रोडक्टरी राउंड में बोल भी दिया कि इज़ ए वेरी गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, अदर तो मैं काफ़ी छोड़ भी चुका हूँ, बट ये कि मैंने उस मीडियम का फ़ायदा उठाया। और ये कुछ ये सारी की सारी, जैसे ये है, ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, खुद बना करके। तो मैंने अपनी ये सब अपनी स्केच बुक में जब से नोट कर लेते हैं ना, डूडल्स बना लेते हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करता, उनको सब को स्कैन करके और इनका एक डिजिटल प्रिंट लिया जिसको बोलते हैं सन बोर्ड। और मुझे ये लगता था कि जब चीज़ें ये चली जाती हैं तो इनको सबको, हुआ ये था कि मेरी एक बहुत पुरानी डिक्शनरी थी, सन 1972-3 में किसी ने मुझे दी थी, उसको दीमक लग गई थी 19 सेक्टर के मकान में। तो ये वहाँ से मैंने कहा भी दीमक खा जाती तो कैसा लगता है सारा का सारा चीज़ें। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट इस पर किया था। मैंने इनको इंटेंशनली यहाँ से जलाया हुआ है, टू गिव न्यू डायमेंशंस, टू एक्सपेरिमेंट विद सम न्यू थिंग्स। और फिर ऊपर से थोड़े थोड़े कलर, एक्रेलिक कलर्स मैंने अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये कंप्यूटर ग्राफिक में बैठे होंगे धामी जी होंगे, तो ये बड़ी कोई इसके लिए बड़ी बारी वो कमेंट्स भेजा करते थे कि बैठे बैठे, जब मेरा अपना स्टूडियो था 17 में, जब कुछ नहीं कर रहे होते तो मैं ये करता था बैठ करके, तो मैं कुछ नई कंपोजिशंस क्रिएट कर लेता था। और ये मेरे पास मेरे ख्याल से 60 के करीब हैं, अलग अलग 60 के करीब है। नेक्स्ट।
ये डिस्प्ले हुई थी आईफेक्स के शो में, एनुअल शो के अंदर। ये मैंने किया लुकिंग मिरर के ऊपर काम। लुकिंग मिरर के ऊपर मैंने वही ये चीज़ें अपनी लेकर के डिजिटल लेकर के कुछ उसमें अपना मैनुअली अपना ऐड किया। लुकिंग मिरर पे मैंने उसको ट्रांसफ़र स्टिकर पे लेकर के उस पर ट्रांसफ़र किया, और फिर ये मैंने एक्रेलिक कलर से ये सब एक्रेलिक कलर मैंने अप्लाई किए उसके ऊपर। तो ये दोनों की दोनों वहाँ पे डिस्प्ले हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। ये इसमें मेरे ख्याल पंजाब ललित कला एकेडमी की उसमें भी लगी थी ये, तो मेरा दिल करता था कि मैं और भी थोड़ा सा डिफरेंट करूं कुछ उसमें। तो ये आयरन शीट्स के ऊपर है। तो आयरन शीट्स पे एकदम कोई मैंने जो सर्विस में रहते हुए कई साइंस पार्क डिज़ाइन किए हैं, तो वो जब वेल्डिंग करके वो काम करता था तो वहाँ से मुझे उसका मिला भी मैं आई शुड डू समथिंग न्यू। तो मैंने पहले ये 1-1 फुट की ड्राइंग्स पे लिया और इनको इंटेंशनली यहाँ से वेल्डिंग मशीन से ही कटवाया ताकि ये अलग से लगे कुछ, और फिर थोड़ा कलर अप्लाई किया इसके ऊपर टू क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन। ये मेरे पास 14 के करीब ड्राइंग पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये इंस्टॉलेशंस हैं, ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम में यहाँ हुई थी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये एजुकेशन सिस्टम पे से इंस्पायर होकर के नोट लेकर के किया था कि हाउ दिस सिस्टम इज़ रनिंग एंड हु इज़ रनिंग दिस, उसके ऊपर किया था। इसीलिए ये जो बैठे पट्टी बांध करके बिठा रखे हैं, ये सब फिगर्स हैं, ये उसकी एमसील में बनाई है, आर्मेचर नीचे दे करके। ये जो है कि जब हम गर्मियों में या सर्दियों में छबील लगाते हैं और हम वैसे बातें करते हैं अमेरिका की, तो हमें सिविक सेंस को लेके जब हम छबील लगाते हैं हमारी भावनाएं कितनी अच्छी होती है, पानी पिलाना किसी को, सो वंडरफुल, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है। लेकिन जब उस छबील को हम छोड़ के जाते हैं तो हम ये छोड़ के जाते हैं। ये उसको पोर्ट्रे करने के लिए मैंने बताई थी। ये जो वाइट कपड़ा है सिंबल है कि वो जो टेंट लगाते हैं सफ़ेद जिसके नीचे वो छबील बेचते हैं वो गिर जाता है। टेबल मैंने ज़रूरत नहीं समझी, उसके नीचे यहाँ छुपा दी, और वो गिलास हम वहीं छोड़ जाते हैं और वो सड़कों पे कई दिन तक उड़ते रहते हैं। तो ये उसको उससे लेकर के किया था। नेक्स्ट प्लीज़। ये पंजाब कला भवन में लगी थी, ये उसी पे है थॉट प्रोसेस की। दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के जो हम इस चीज़ को पूरी पुरानी कहावत है और बड़े बेबाक होकर बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अलर्ट हो जाएं हम, एक थॉट प्रोसेस था कि भी चलो है। और दीवारों से बढ़िया चश्मदीद गवाह किसी भी घटना का कोई नहीं आज तक भी। जितनी किले की दीवारें, जितनी उन चीज़ों की दीवारें, घर की दीवारों से पूछो, तभी तो वो महादेव जी का शेर है कि घर की दीवारें बेहतर हैं घर में ही गिर जाएँ तो। अफवाहें फैला करती हैं जब गिरती है दीवार गली में, तो गली में बात नहीं जानी चाहिए। तो ये उसके पीछे है। और ये है हिस्ट्री हैपनिंग। हम क्या हैं, एक मेल्टिंग कैंडल ही तो है एवरी डे। जिस दिन हम आते हैं संसार में उसी दिन से हमारा उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो ये मोमबत्ती या मोम मैंने वैक्स दीवारों इस पे दीवार से गिराई थी ताकि ये कि भी एवरी डे यू आर मीन्स नोट रिड्यूसिंग, तो नहीं, एक कुछ ना कुछ घट रहा है, ये उससे था। और ये थी इंस्टॉलेशन कि हम कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, बच्चों को ही बढ़ाते हैं। तो आप कभी देखो कि ब्रिक्स को अगर यूँ ब्लॉक करके क्रॉस करके लगाओगे तो वो दीवार नहीं गिरेगी, अगर पैरेलल खड़ी कर दोगे दीवार गिरेगी वो। तो वो एंगल इसके अंदर मैंने दिया था। नेक्स्ट प्लीज़। ये मेरी सबसे फेवरेट इंस्टॉलेशन थी कि हम कितने सारे टेम्पल्स हैं, खाजुराहो फलाना ढिमका, जो भी मैं नाम नहीं जानता, हज़ारों सीढ़ियाँ, 500 सीढ़ियाँ, 100 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। और वो क्यों बनाई आप सबको बताया कि चलो उसका जो कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है, कितनी है, उसको शायद एग्जामिन करने के लिए कितना उससे लगाव है, वो है। और आज ये मंदिर इसको उस पर बैलगाड़ी पे लाद के हमारे घर पे ला दिया जाता है कि अब तो कोई पूजा पाठ कर लो, या जो भी उनका लेगेसी है। और उनके पीछे उस आदमी की जो लेके आता है उसका है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो दिस वाज टाइटल्ड एज ए होम डिलीवरी ऑफ गॉड। तो ये गॉड हमारे घर में डिलीवर करने लग गए बजाय मंदिर में जाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। ये मैं कहता भाई अलग अलग मीडियम में काम करने का मुझे अच्छा लगता है। तो ये स्कल्पचर्स मैंने बनाए थे, ये सब डिस्प्ले हुए हैं और ये आईफेक्स में अवार्ड भी मिला था उसके ऊपर। ये टी डिप्लोमेसी के साथ मैंने बनाए थे। इसका है कि भाई ये एक सोल है और मैं ये दिमाग पे अपने लगाओ ताला, जिससे काम निकालना हो ना, या दिल की मत सुनो ना सोल की सुनो। चाय का कप पिलाओ और अपना काम निकालो। इसकी बैक साइड मेरे पास फोटोग्राफ नहीं थी, उसके पीछे घड़ी लगा रखी थी, चलती है। उसका मैसेज ये था कि वक्त के साथ चलो, ज़्यादा मत सोचो।
इस तरह से करो। और ये है माइंड सेट फॉर टी। इसमें बड़ी सारी आपको ये नज़र आएगी, ये मेरी फोटोग्राफी ठीक नहीं है, मैंने कोई हेल्प नहीं ली, इसमें यस बॉस फलाना हम दफ्तरों में या क्या हर जगह देखते हैं, चाहे यस बॉस, चाहे या यस बॉस, और वो सारा कुछ इस तरह उलझा हुआ होता है। तो वो मैंने दिखाया, और ये इसके दिमाग पे स्क्रू मैंने इसलिए है कि दिमाग मत लगाओ, फॉलो करते रहो। ये बॉस नहीं है, ये हम जो चाय पिलाने वाले हैं उनका है। दिमाग मत सोचो कौन क्या कर रहा है, कर दो उसको। नेक्स्ट प्लीज़। ये जो है बर्तन धोने के लिए, तो घर में बर्तन धोते थे, और पता ही है कि जब उसमें जिसमें रहते थे वहाँ एक ही वो सिंक होता था, तो उससे इंस्पायर होकर बनाई है। और ये टी डिप्लोमेसी वाली भी सारी स्टील में है, ये स्टील के कप हैं, और चाय कैसे पोर होती है उसमें से आम आदमी के लिए जो चाय जाती है, जो मैंने पीछे बात की, वो इस तरह जाती है चाय। तो ये बनाए थे, इसमें और भी थे, बस ज़्यादा नहीं इसमें दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक मुझे कोरोना में, बाकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या हुआ था, कैसा वक्त था, बट ये एक शहर के अंदर वॉल पेंटिंग्स थी जो जिनको मैं बड़ा, आज भी मैं किसी भी आर्ट पीस को ख़त्म होते ही मुँह होते हुए देख नहीं सकता। ये वॉल पेंटिंग्स डैमेज होती जा रही थी, और आर्ट्स कॉलेज से पास आउट करने के बाद, इतनी सारी पेंटिंग करने के बाद, मुझे उनमें कुछ क्रिएटिव एंगल्स भी नज़र आते थे, कुछ और चीज़ें भी आती थी नज़र। तो ये मैंने एक उनको शूट करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की थी, और ये एक कॉफ़ी टेबल बुक थी 250 पेज की, ये लिखी थी, टोटल 4 कलर बुक है, उनसे इंस्पायर होकर के। ये फिल्म के डायरेक्टर, आपने फिल्म रिलीज देखी थी, यहाँ थी, तो ये हमने थोड़े से जो है ना, किस तरह ये काम हो रहे थे, किस तरह किए थे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगाई है ये मैंने। नेक्स्ट प्लीज़। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, it is again my pleasure to introduce Jas Kamaljeet Kaur Ji, a remarkable multidisciplinary artist whose creative journey spans over 5 decades. Her work is rooted in deep observation, reflection, and an intimate connection to the world around her. For Jas Kamal, art has never been just a technique or craft. It is a way of walking through life. She often describes her journey as a barefoot walk along a quiet, dusky path, a path shaped by courage, sensitivity, and a profound companionship with nature, emotion, and memory. She finds inspiration in the everyday. Materials that many of us might overlook or even discard become in her hands something meaningful and full of life. Through simple objects, she reveals the extraordinary. Her art embraces experience in its wholeness, the joys, the doubts, the struggles, and the moments of clarity, reminding us that every part of our journey has value. Her works invite us to slow down, to notice, and to feel. They remind us that beauty is not always loud. Sometimes it is quiet and patient, waiting for us to look a little more closely. Please join me in welcoming an artist of depth, honesty, and profound sensitivity, Jas Kamaljeet Kaur Ji. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਰੁਝਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਫ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਫ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਕੱਟਾ, ਪੱਥਰ, ਕੰਡਾ, ਝਾੜੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਹ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਕ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮ, ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਸਭ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੋਰਨ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ DNA 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਪ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸ਼ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਟਸ ਅ ਟੀਡੀਅਸ ਜੌਬ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਲਰਸ, ਇੰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਪ ਖੁਰਚਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਰਚਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਸਲਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੰਪਲਡ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੰਪਲਡ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ऑल पिन्स हैं, वायर्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, एक्सरे शीट्स है। एक्सरे शीट वैसे मैडिकल टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਸਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਲੀਨੋ ਕੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਨੋ ਕੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਥਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਨੋ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਨੋ ਕੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਫਸਟ। 76 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ, ਕਟਿੰਗਸ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਮੇਰੇ 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਿਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਭੀੜ ਭੜਾਕਾ। ਔਰ ਉਹੀਓ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਸ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SI ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸਚਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਕਰਬਰ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਡ ਯੂਜ਼ਡ ਦੈਟ ਫॉर ਦ ਟੈਕਸਚਰਸ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਔਰ ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਰਮਸ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਾਰਕ ਟੂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਵੀਕਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ 3 ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ 3 ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ HRD ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਲਲਿਤ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ। ਅਗੇਨ ਸਟੈਂਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੁੱਡ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਡੋ ਇਟਸੈਲਫ ਸ਼ੈਡੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਟੈਕਸਚਰ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਹਿਊਮਨ ਫਿਗਰਸ, ਵਾਇਰ, ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਸਟੈਂਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਰੀ ਨਾਈਟ ਵੈਨ ਗੌਗ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਿਠਾਈ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਮੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਆ, 60 ਸਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਹੈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਜਾਪਾਨ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਂਡੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਖਰੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੈਂਡੇਜ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਫੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਡੇਜ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੈਂਡੇਜ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਚਰਸ ਐਂਡ ਪਿੰਸ ਦੋਨੋਂ ਬੜਾ, ਟੈਕਸਚਰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਖਰੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜੋੜਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਓਪਨਨੈਸ, ਟੈਕਸਚਰਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀਡਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੀਡਮ ਮਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਮਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਫਰੀਡਮ। ਨੈਕਸਟ, ਡਾਇਲੌਗ, ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਡਾਇਲੌਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਲੌਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗੇਨ ਡਾਇਲੌਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ submissiveness is also there. Some of the times we are humble towards each other. ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, you are right. That is the feeling in this.
ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵਾਲੀ, ਨਾਈਟ ਟੂ ਡੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਪਫੁਲ ਐਂਡ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੰਮ ਭੀਮ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਵਿਦ ਵੁੱਡ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਲੌਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੁਝ ਸੋਚ, ਕੁਝ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਕੁਡਲ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਡਲ ਮੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕਲਰਸ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਕੁਡਲ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲਿਊ, ਉੱਪਰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਉਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਇਟ ਸੈਲਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਰਨੀ। ਬੋਟ ਹੈ, ਬੋਟ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਅ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ crumpled ਪੇਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਲੀਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲਰਸ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਈਵਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਈਵਨ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਪ ਕਦੀ ਡਾਊਨ, ਕਦੀ ਲੈਂਡ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੈਂਜਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਟਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਅਨਦਰ ਫੈਲੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ
ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 6-6 ਫੁੱਟ 8-8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੜਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਸੋਮਨਾਥ ਹੋਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਓਲਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੂਡੀਓ, ਟੂ ਟੱਚ ਦੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੀਥੋ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਟੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉੜ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਛੂਆ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਟੋਟਲ ਹੇਅਰ ਟਰਟਲ ਐਂਡ ਮੀ। It moves with the wisdom. It's a sign of wisdom. It's a sign of its ਮਸਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਸ ਮੀ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਡੌਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਸੀਲ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਲਿਥੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਪੱਟੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਿਪਸ, ਕ੍ਰੰਪਲਡ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਡ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰਸ, ਐਕਸਰੇ ਸ਼ੀਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਅਵਨਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਰਨੀਜ਼ ਐਂਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਹੈ, ਇਟਸ ਡਾਈਂਗ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਕੈਮਲ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਲੋਡਿਡ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਡਬਲ ਲੋਡ ਹੈ ਇਸ ਊਠ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਾਈਲਡ ਜੇ ਵਾਈਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਰਕੰਡੇ ਜੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਉੱਡ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਲਕੱਟਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਓਪਨ ਡੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ।
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਬੜੇ ਆਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗੇਨ ਪੱਤੇ, ਕਲਾਈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਾਈਂਬਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਸੋਲੋ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਬੜੀ, ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੀਚੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਓਬਜ਼ਰਵਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਲ ਡੇਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ 3 ਸਟੋਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟੋਨਸ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ, ਟਰੈਵਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਛਾਪ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਛਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੇਟ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਲਿਓਨ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰਸ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਡਿਸਕਾਰਡਿਡ ਏਰੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਨੈਕਸਟ,
ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨੋ ਇਟਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਸੀਗਾ 5 ਫਲੋਰਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੀ, ਔਰ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਬਿਟੈਟ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਹੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮਿਲੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। वाकई आज का दिन हम सब के लिए बड़ा बहुत ही खुशगवार, बहुत अच्छा दिन रहा। मैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के नाते, उससे पहले सेक्रेटरी था, वाइस प्रेसिडेंट था, और दिल्ली में नेशनल अकादमी के प्रेसिडेंट होने तक यहीं था। तो दीवान मन्ना जी और राम प्रताप वर्मा और हमारे जो पूरी टीम है, उस टीम के साथ लगभग 30 साल से हम साथ हैं। तो 30 साल का ये जो वक्फा है, चंडीगढ़ में राम प्रताप और मैं एक ही शहर में पैदा हुए, साथ साथ बढ़े। ये जो जर्नी होती है किसी भी आर्टिस्ट की, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग का 10%, 15%, 20% हिस्सा नज़र आता है, 80-90% तो दबा रहता है, वो दिखाई नहीं देता समाज को। लेकिन वो 90% जो हिस्सा दबा हुआ है, वो उनकी आर्ट के बीच की और उसके पीछे की फाउंडेशन होती है। वो आर्टिस्ट कभी किसी को नहीं बताता, ना कोई लेखक बताता है, वो आपको महसूस करना पड़ता है। तो भीम मल्होत्रा जी को बड़ा साधुवाद, इतना बढ़िया काम हुआ है। हमारे देश में 2 चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, हमें भी नहीं पता था। नेशनल एकेडमी में 15-20 साल से जाना, बाहर गया तो पता लगा मुझे कि हमारे नज़रिए में और वेस्ट के नज़रिए में क्या फ़र्क है। राम प्रताप जी ने बहुत सारी बातें तो बता भी नहीं सकता आदमी, एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया। चीमा साहब ने जो बात कही थी वो मैं पूरी कर रहा हूँ। राम प्रताप वर्मा जितने कला के क्षेत्र में रहे, उतना ही समय ये साहित्यकारों के साथ रहे। ये हरियाणा साहित्य अकादमी में एज आर्टिस्ट थे, उसके बाद जनसत्ता में और इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने काम किया। इन्होंने हिंदुस्तान के हर बड़े लेखक के कवर डिज़ाइन किए। एक आपको ताज़ा खबर दे रहा हूँ, कुछ एक किताबें रशियन में अनुवाद हुई हैं, उसमें मेरी भी एक कविता की किताब थी, कतई मुश्किल नहीं, जिसको JNU के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं सोनू सैनी, उसने उसको एडिट किया। तो रशियन में जो भी किताब छपती है पोइट्री की, हमारे यहाँ तो सीधे शब्द छपते हैं, कविता छपती है, वो उसमें स्केचिंग के अलावा प्रकाशित ही नहीं करते वो किताब। तो उन्होंने एक रशियन आर्टिस्ट को एंगेज किया हुआ था एम्बेसी ने। अब रशियन आर्टिस्ट जब मेरे से बात करता था तो मुझे भी लगता था कि कन्वे नहीं हो रही है और उसको समझ भी नहीं आ रही है। किसी तरह से JNU ने राम प्रताप वर्मा के साथ संपर्क किया। उन्होंने उन 50 कविताओं पे इनकी पेंटिंग्स ली, और पिछले साल लिटरेरी ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक लेखकों का सम्मेलन होता है। लोगों को प्रधानमंत्रियों का तो पता है, राइटर्स का नहीं पता। वो किताब वहाँ रिलीज़ हुई और अब वो मॉस्को में पढ़ाई जा रही है, तातार में भी। मेरी कविता से ज़्यादा इस आदमी की पेंटिंग्स और वो स्केचेस है, उनकी बात होती है। जब एम्बेसी में उसका उद्घाटन हुआ तो लोग मेरे से कम सवाल पूछ रहे थे। ही वॉज आस्किंग अबाउट द आर्टिस्ट, हु इज़ दैट फेलो हु हैज़ इंट्रिकेटेड सो मैनी इमोशंस इन ए सिंगल ड्राइंग।
ये उनकी बात थी। राम प्रताप ने पता नहीं वो हिस्सा, ये आदमी ऐसा है जो अपने मुंह से बड़ाई करते हुए डरता है, संकोच भी करता है। हम जिस माहौल में पैदा हुए, अब हालत ये है कि वो मुझे रशिया का फिर एक अवार्ड मिला और हिंदुस्तान को पहली बार मिला दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड। तो जब मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ देखिए 3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ के लोगों को ये नहीं होता। कविता जब पेश की जाती है तो पीछे कविता का टेक्स्ट आता है, उस टेक्स्ट के साथ उसका स्केच आता है। 3 मिनट बाद उस कविता पे कोई लेडी सैक्सोफोन बजाती है और 5 मिनट बाद उसी कविता पे कोई बैले डांस होता है। वो सारी जो आर्ट फॉर्म है, दे कॉल इट द एक्सटेंशन ऑफ सेंसिटिविटी, उनका ये वर्ड है, ये रशियन का। ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम था। 2-4 साल पहले जब मैं मैक्सिको गया, रशिया गया, कजान गया, तब पता चला। अब हमारे यहाँ हालत ये है कि जब पेंटिंग की होती है, आर्ट काउंसिल का कुछ होता है, चंडीगढ़ आर्ट एकेडमी का कोई प्रोग्राम होता है, तो साहित्य के लोग नहीं आते, नाटक वाले नहीं आते। वहाँ संगीत का होगा तो लेखक भी आएंगे, पेंटर भी आएंगे, स्कल्पटर भी आएंगे। वो जो यूनिफाइड सेंस ऑफ आर्ट है वो वहाँ डेवलप हुई है, हमारे यहाँ नहीं हो पाई है। इसलिए कई बार हमें पता नहीं लगता। इसमें कोई दो राय नहीं, ज़िंदगी की जितनी भी कलाएं हैं उन सब कलाओं के मूल में ह्यूमन इमोशन है। एक आदमी उसे शब्दों की इमेज करता है, आप उसे विजुअल इमेज में डाल देते हैं। उसी इमोशन को कोई नाटककार नाटक में प्रस्तुत करता है, थिएटर आर्टिस्ट उसके सामने रख देता है, और उसी को कोई स्कल्पटर के रूप में ऐसा पत्थर की मूर्ति पे रख देता है, हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उसी को कोई बैले में, कोई डांस में करता है। तो वहाँ चीज़ें इसलिए ज़्यादा आसान है। एक बात और मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, मैक्सिको में जब मैं इंटरनेशनल राइटर कॉन्फ्रेंस में गया तो उनकी संसद भवन के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था और उस पार्क में बहुत सारे स्टैचूज़ थे। तो मैंने अपने, वो जो गाइड साथ मिलता है, हमें इंटरप्रेटर मिलता है, मैंने उससे पूछा ये सब आपके लीडर्स हैं? वो कहता नो जेंटलमैन, दे आर ऑल आर्टिस्ट एंड ऑथर्स ऑफ आवर कंट्री। वहाँ किसी नेता का बुत नहीं है, कलाकारों के बुत हैं। पूजा होती है कलाकारों, लेखकों की पूजा होती है। वहाँ जाके हमें लगता है कि हम उनसे बहुत बहुत साल पीछे हैं। उनको रंग बोलते हुए दिखाई देते हैं, पता लगता है कि वो क्या कहने जा रहा है। तो मित्रों, हमें भी अपने मन का, दिमाग का, अपनी आत्मा के बहुत सारे दरवाजे खोल लेने चाहिए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। एक बात और चंडीगढ़ के बारे में कह के मैं विराम देता हूँ। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, हर जगह। हिंदुस्तान का अकेला चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहाँ कोई लिंग्वल कोई दुर्भावना नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, जिसकी जो ज़बान है, जिसका जो स्टेटस है, जिसका जो काम है, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं। भगवान करे कि इस शहर को नज़र ना लगे और इसके कलाकार इसी तरह इस शहर का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई भीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोनों कलाकारों के लिए एक मुझे अपनी कविता की एक पंक्ति याद आ रही है, इसी तरह से चलते जाओ सपनों का संसार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हार लिए। धन्यवाद। I would like to invite Ravinder Sharma ji to give a vote of thanks. मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन आज इस सभागार में विशिष्ट कला समीक्षक बैठे हैं, इतिहासकार, साहित्यकार, कलाकार, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और हम सब ने
आज बहुत आनंद लिया। मैं उस पर कुछ शब्द आपके थैंक्स में कह रहा हूँ। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोई, भाग तिना दे हे सखी जिस घट प्रगट होए। ये साइयाँ हमारी तलाश है। तलाश उस तलाश को कहते हैं जो बाकी सब तलाश को ख़त्म कर देती है। वो हमारी प्रेसी भी है और हमारा साइयाँ भी है। तो ये दो आर्टिस्ट जिनके घट से ये प्रकट हुए हैं, हम सब ने देखा है। इनकी तलाश में हम बैठ के अपनी तलाश जोड़ रहे होंगे। ये तलाश सबसे उत्तम प्रेसी है। मैं जब घर से चला तो मेरी बेटी ने कहा, पापा एक पार्सल आया है, उसमें रूमी की किताब मुझे मिली। मैंने खोली और एक शेर मेरे नोट किया मैंने, जो आज के इस कहना चाहिए कला प्रवचन के लिए बहुत सूट करता है, क्योंकि कुछ युवा लोग भी बैठे हैं, विशेषकर आपके लिए। क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं, केवल उस प्यार में कुछ त्रुटियां, कुछ चैलेंजेस आते हैं, जिसके बारे में रूमी ये कहते हैं, सेपरेशन बेंड्स द बैक ऑफ होप। हमारी दूरी हमारी आशाओं की कमर को झुका देती है। कई बार हम अपने ही लक्ष्य से दूर बैठे होते हैं। क्रूएलिटी टाइज द हैंड्स ऑफ लॉन्गिंग। समय और स्थान की क्रूएलिटी हमारे अंदर जो तड़प है उसके हाथ बांध देती है। हम तड़पना भूल जाते हैं। तड़प बहुत ज़रूरी है। बट द लवर्स नेवर डिस्पेयर्स। प्रेमी कभी उदास नहीं होते इन चीज़ों से। फॉर ए कमिटेड हार्ट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये जो कमिटेड हार्ट यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बैठना, इनको सुनना, ये दोनों आर्टिस्ट भी आज कमिटेड हार्ट हैं, जिन्होंने कितने ढंग से अपनी बात कही है। आप सबका इसमें शामिल होना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Please, all the members of Chandigarh Lalit Kala Academy to come together for a group photograph with the artists. सो थैंक यू अनु। कुछ हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी आ जाओ ऊपर। ये दीवान जी प्लीज़ कम, ग्रुप फोटो में आओ ना। माधव जी, कपूर साहब, रविंदर शर्मा, गुरदीप जी, धामी साहब, गुरदीप जी, तुली साहब, मल्होत्रा साहब, विनय वडेरा जी, मल्होत्रा साहब आ जाओ। ये जितनी एक थोड़ी बहुत जगह है जो आते हैं, आ जाओ। माधव जी, आप भी आ जाओ सर। So thank you Anu and Shilpi Arora and our Kamalpar Ravinder Sharma ji. Thank you all for coming, and with this we are winding up the evening, and you're all please requested to have a cup of tea and refreshments which are served outside. Thank you.